Now today's we will discuss on the class of depression. Depression is the mood disorder. It's a type of the mood disorder. Common mental disorder that's present with depressed mood, loss of interest or pleasure, feeling of guilt or loss self-worth, disturbed sleep, appetite, low energy, and poor concentration. Now, type of depression. Depression is the worldwide type of depression. So depression is the worldwide number one comorbidity in the worldwide currently. A type of depression, major depressive disorder, recurrence of the long episode, low mood, one extended episode that seems to be nerve ending, atypical depression, postpartum depression, catatonic depression, seasonal affective disorders, melancholic depression, dysthymic depression, lasts a long time but involves less severe symptoms, dysthymic depression. This is the chronic depression patient is going on, which is on the low mood, only low mood, like a mild depression. Lead a normal life, but we may not be functioning well or feeling good. Situational depression, psychotic depression, endogenous depression. That's about the major depressive disorder. Unipolar depression, lifetime prevalence up to 21% to 21% in women, 13% when men. Typical age of the onset 20s, but can occur at any time. This occur more common in the female gender than male. What is the symptoms of MDD? Feelings of sadness, tearfulness, emptiness, hopelessness, angry, outburst, irritability, frustration, even over small matters, low of interest, pleasure in most or all normal activities such as sex, hobbies, or sports, sleep disturbance, including insomnia, sleep too much, tiredness, and lack of energy. So, even small tasks take extra efforts, reduce appetite and weight loss, or increase craving for food and weight gain, anxiety, agitation, restlessness, slow thinking, speaking, body movement, feelings of worthlessness or guilt, fixation on past failure or self blame, trouble thinking, concentration, making decisions, or remembering things, frequent or recurrent thought of death, suicidal thought, suicidal attempt, or suicide, unexplained physical problems such as a back pain, headache. A typical depression, as per description of the DSM-4, currently is going on the DSM-5. But as per DSM-4 is depression that share many of the typical symptoms of the major depression or dysthymia, but is characterized by an improved mood in response in positive events. It is also features significant weight gain or an increased appetite, hypersomnia, a heavy sensation in the limbs, interpersonal rejection, sensitivity that results in significant social occupational impairment. Postpartum depression, very important. Also called as a postnatal depression, associated with the childbirth, can affect both sexes. Symptoms may include extreme sadness, low energy, anxiety, crying episode, irritability, change in sleeping, eating pattern. Onset is typically between 1 week or 1 month following childbirth. PPD can also negatively affect on newborn child. Catatonic depression. Catatonia, actually there are three types, like mixed stereotype, stupor. Huh? So catatonia generally occur in the depression, mania, schizophrenia, and conversion disorder. So one of psychiatric comorbidity, the depression, which has catatonic features.
Catatonic depression affect the individual motor skills, can be caused by other underlying mental health disorders such as schizophrenia, mood disorder, post-traumatic stress disorder. People with catatonia remain still and do not respond to any event things around them. There are three types of catatonia: akinetic, excited, or malignant catatonia. Akinetic catatonia most commonly observed the people with catatonic depression, मतलब movement नहीं करना. Malignant catatonia can be diagnosed, cause severe health effect. Like catatonic symptoms, you can observe as a symptom and signs like automatic obedience. The patient automatically obey all instructions given by the doctor. Ambitendency, the patient alternate between cooperating with the doctor's instruction and resisting them. Aversion, a patient turn away when he or she being spoken to. Echopraxia, yes, come. The patient imitate the activities of person speaking with him or her. Excitement, patient engage in the excessive purposeless action that is not driven by the outside stimuli. Negativism, the person is always having negative thought and feel sad every day. Stupor, the one is the common sign of the catatonia. It's characterized by lack of mobility and speech. Posturing, a person remains in the same posture for a long period of time. Mutism, the person is verbally unresponsive and refuse to speak. चुपचाप हो जाना, कुछ नहीं बोलना, कितनी बार सवाल करो आप नहीं बोलेगा, उसको म्यूटिज्म बोलते हैं. म्यूट है ना, दैट्स म्यूटिज्म. Staring, the individual eye is fixed on the particular space and often for long period of time. तो ये जो साइंस सिम्टम अपन ने पढ़े हैं, ये आपको सिजोफ्रेनिया में भी यही मिलेंगे. कैटाटोनिया किस किस में होगा? सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मेनिया, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर कैसे, चार तरह के कैटाटोनिया मिलता है अपने को. और एक कैटाटोनिक जो सिम्टम्स मिलेंगे आपको, वो एक न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, आप पढ़ोगे, जो कि एक ईपीएस का टाइप भी होता है. एंटीसाइड साइड इफेक्ट होता है, जो है बहुत सारा एंटीसाइड अगर दे दे तो एनएमएस बोलते हैं उसको. तो उसमें भी कैटाटोनिक जो सिम्टम्स आते हैं. सीजनल डिप्रेशन, लाइक इसको ऐसे बोल सकते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीजन वाइज डिप्रेशन आना, लाइक रेनी सीजन, समर, विंटर. तो आई वुड लाइक टू वन क्वेश्चन, बताओ कि डिप्रेशन कौन से सीजन में ज़्यादा होता है? ये तो आप सुना ही होगा, विंटर, यस राइट. मैनिया जानते हो मैनिया वाले पेशेंट कैसे होते हैं? क्या करते हैं मैनिया वाले? थोड़ा सुना तो होगा, नहीं सुना? मैनिया वाले बिग टॉक्स, बड़ी बातें करना, और कॉन्फिडेंस, अपने आप को सुपीरियर समझना, जबकि ऐसा उनका रियलिटी है ही नहीं, बैकग्राउंड है ना, लाइक दैट. चीयरफुलनेस, बिना फालतू ही हैप्पी रहना, विदाउट रीजन, दैट्स मैनिया. तो सीजनल डिप्रेशन, मोर देन जस्ट विंटर ब्लूज अक्सर सर्दियों में ही ज़्यादा होता है. Like also another damage, we discussed seasonal affective disorder or seasonal depression. One thing, same thing occurs at the same time each year. एक ही टाइम पे होगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब जुलाई आते हैं मुझे डिप्रेशन हो जाता है. कुछ लोग ऐसे आएंगे कि नवंबर आते हैं मुझे डिप्रेशन हो जाता है, दिसंबर आते हो जाता है, पर्टिकुलर उसी टाइम के आसपास होगा, है ना. तो उसको सीजनली बोल सकते हो आप. ऐसा नहीं कि विंटर में होगा, हो सकता है वो जुलाई में भी, रेनी सीजन में हो सकता है वो समर में हो, जून में, अप्रैल में, लाइक दैट. तो वो भी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा. Linked to reduce exposure to sunlight during the shorter autumn and winter days, production of melatonin, serotonin and circadian rhythm. इसका भी एक मैकेनिज्म एक्शन होता है. आपका सन एक्सपोजर कम मिलेगा, है ना, तो मेलाटोनिन जो फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ेगा, पेशेंट सोता रहेगा, वो भी एक डिप्रेस होने का रीज़न है. सीरोटोनिन कम हो जाएगा,
है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है सीरोटोनिन जो है, समझते हो सीरोटोनिन क्या होता है? यस, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, उसी का हार्मोन है ना। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा यही कम होता है, यही लो जाता है, इसलिए अपना एंटी डिप्रेशन देते हैं सीरोटोनिन। ऐसे डोपामिन होता है, नोरेपिनेफ्रिन होता है ना, वो भी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। मेलाटोनिन भी एक हार्मोन है जो बॉडी में बनता है। कौन सी ग्लैंड बनाती है मेलाटोनिन? हाँ, पीनियल ग्लैंड, गुड। सर्काडियन रिदम मतलब समझते हो? हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, उसमें सुपर कैजुटिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वहां से सर्काडियन रिदम कंडक्ट होता है पूरा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ना। लाइक कोई जैसे पेशेंट आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को स्लीप 2 बजे तक आती है, फिर 10 बजे सोता हूँ। पहले तो अच्छे टाइम पे आती थी, 8 से 8 आती थी, लेकिन अब ये आगे आगे हो गया। तो इसका मतलब सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया, है ना। ये इस पे शॉर्ट आउट आता है सर्काडियन रिदम। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये सर्काडियन रिदम? ब्रेन के कौन से पार्ट से स्टार्ट होगा? हाइपोथैलेमस एंड उसमें सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई। A persistent low mood, a loss of pleasure or interest in normal everyday activity, irritability, feelings of despair, guilt and worthlessness, feelings of lethargic, lacking in energy, sleep during the day, sleeping for longer than normal and finding it's hard to wake up, craving carbohydrate, gaining weight. Melancholic depression. Melancholic depression or depression with melancholic features is DSM-4 and 5 subtypes of clinical depression. Signs symptoms requiring at least one of the following symptoms like anhedonia. It means decreased interest in the previous pleasurable activity or recent currently pleasurable activity, daily activity में इंटरेस्ट नहीं होना, लाइक टीवी देखना या किसी से बात करना या म्यूजिक सुनना या कहीं घूमने जाना, दोस्तों से बात करना, इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, उसको एनोडोनिया बोलेंगे। लैक ऑफ मूड रिएक्टिविटी, किसी तरह का आपको रिएक्शन नहीं देगा। एंड एटलीस्ट 3 of the following: depression that is subjectively different from grief of loss, severe weight loss or loss of appetite, psychomotor agitation or retardation, every morning awakening, guilt that is excessive, worse mood in morning, double depression. Yes, very important, double depression. Double depression is called as a dysthymic disorder. Dysthymia is going on with MDD up to 2 years. Is called double depression. Prognosis more negative, poor कह सकते हैं आप। Epidemiology. Globally, more than 350 million people of all age suffer from depression. अभी का डेटा तो ज़्यादा होगा, कह रही रिसेंट डेटा नहीं है। तनु रिसेंट डेटा है 350 मिलियन। ज़्यादा है, ये तो रिसेंट नहीं है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, अभी का देखना पड़ेगा, ये अभी फिर भी ये मान के चलो। फॉर द एज ग्रुप 15 to 44 मेजर डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी यूएस। डिप्रेशन एक पर्टिकुलर एक कंट्री की समस्या नहीं है, इंडिया की समस्या हो, वर्ल्ड वाइड समस्या है। WHO ने अनाउंस कर दिया है कि ये आने वाले टाइम में पेंडेमिक बन जाएगी, ये पेंडेमिक है ना। तो ये फर्स्ट नंबर पर जो डिजीज बीमारी आ चुकी है मॉर्बिडिटी में, है ना, तो दैट्स प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। मोस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्ट है, इवन यूएस है, यूके है या फॉरेन कंट्रीज है अब्रॉड सारे। वुमेन्स आर नियरली ट्वाइस suffer from major depressive disorder.
जेंडर वाइज अगर आप डिफरेंस करें तो वुमन में 2:1 रेशियो होता है. With age, the symptom of depression become even more severe. About 30% of people with depressive illness attempt suicide. 30%. सबसे ज़्यादा सुसाइड जो करते हैं पेशेंट, बता सकते हो कौन सी कंट्री में करते हैं? पढ़ा होगा अखबार में या कहीं सुना हो? कौन सा कंट्री इसमें करते हैं? जापान तो यार बढ़िया है, सब खास करके बहुत से काम करते हैं, बच्चा सब काम करते हैं, और डेवलप्ड वो लोग, तो उनको तो जरूरत ही नहीं डिप्रेशन होने की, वो सुसाइड क्यों करेंगे? हालांकि डिप्रेशन है वहाँ पर भी करते हैं, ऐसा नहीं. यूएसए, उसमें है सैन फ्रांसिस्को, नाम सुना? सैन फ्रांसिस्को, उसमें गोल्डन ब्रिज है, एक सुसाइड पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ जाके लोग कूद जाते हैं उस ब्रिज से. हाँ? तो वहाँ सबसे ज़्यादा होता है. और मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में? मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन वर्ल्ड वाइड? अफगानिस्तान. क्यों अफगानिस्तान क्यों आएंगे? वो तो बंदूक लेंगे टेररिस्ट वहां पे सारे. पब्लिक को तो उन्होंने शाम कर दिया, तालिबान ही आ गए. तो मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री एज पर सर्वे लाइनसेट जर्नल, इंडिया. ये आप देख लेना कोट करके. एम आई राइट तनु? हाँ, इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री. नहीं, गलत नहीं है, ये डेटा सही है. ये जो लाइनसेट बड़े बड़े जर्नल आते हैं ना, जो बड़े बड़े सर्वे करते हैं, तो वो गलत नहीं छापते. हाँ, ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन आप इसको काउंटिंग करके देखा जाए तो अगर सर्वे में जो बड़ी बड़ी स्टडीज अगर कोट करके देखोगे जर्नल, तो उठा के देखना, इसमें मिल जाएगा वो किसका कितना प्रोलेंट, कितना परसेंट प्रोलेंस कौन से कंट्री में आ रहा है, किसमें कितना आ रहा है, सब करता. कई बार फ्लक्चुएट भी करता है, ऐसा नहीं कि रैंकिंग चेंज नहीं होती, रैंकिंग भी चेंज होती है. नहीं, वो इसलिए होते हैं, वो नहीं, वो फिर नेक्स्ट जर्नल में, नेक्स्ट आर्टिकल में, या जो भी स्टडी आती है या नेक्स्ट डेटा आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें रैंकिंग चेंज होती है इनकी. ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे वो ही बताएंगे. सिचुएशनल भी होता है ना, सर्कमस्टांसेस सिचुएशन. अब जैसे पेंडेमिक आई कोविड, तो उसमें तो मोस्टली डिप्रेशन 4 गुना बढ़ा है. बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 4-fold. 4 गुना डिप्रेशन. जो नॉर्मल बंदे थे, जिनको कभी लाइफ में हुआ ही नहीं, वो भी डिप्रेशन में आ गए, और जिनको दवाइयाँ चल रही थी रिलैप्स हो गए, ठीक हो गए, वापस दवाई शुरू करनी पड़ी. वो क्यों? कोविड की वजह से. एक फोबिया, एक एंजाइटी. इवन अभी कल परसों में पढ़ रहा था ब्रिटेन में एक्चुअली अभी लोगों में फोबिया बहुत ज़्यादा है. एक घोस्ट सिंड्रोम चल रहा है, आपको घोस्ट सिंड्रोम, अंधेरे से डर लगना या भूत की परछाई दिखना. टाइम्स ऑफ इंडिया कल परसों देखना आप, मिलेगा उसका. With the as the symptom of depression become even more severe, about 30% people with depressive illness attempt suicide. 30%, 1/3 है ना, 30%, सॉरी 30%, 30. तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है. इतना तो नहीं करना चाहिए. एक कंट्री ऐसा है जिसने कि अपन एक टास्क फोर्स बना रखी है, डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते चाहो तो आप. कोई भी बंदा डिप्रेशन सुसाइड करने से पहले फेसबुक पे लिख देता है आजकल, है ना, सोशल मीडिया पे लिख देता है, या कुछ ना कुछ हिंट देता है फैमिली वालों को. मेरे पास पेशेंट आते हैं सीवियर डिप्रेशन सुसाइड वाले, तो उसको हम एडमिट करते हैं, एंटी सुसाइड प्रोटोकॉल फॉलो अप करवाते हैं उसको, कि उससे उसको दवाई खुद नहीं देना है, दूर रखनी है, रस्सी, चाकू, जो भी दुपट्टा है वो दूर रखना है, या मेला तो जो भी है, बाथरूम में लॉन्ग टाइम अकेला नहीं छोड़ना है, 24 घंटे 24 वॉच क्लॉक रखना है, इस तरह की चीज़ें.
और इसका लीगल एस्पेक्ट बता देता हूँ सुसाइड का आपको, कि कोई बता सकता है आप में से कि लीगल क्या है, लीगलिटी क्या है, इसकी लीगल एस्पेक्ट क्या है? हाँ, यस, सुसाइड करना क्राइम नहीं है, ये वो धारा हटा दी उसको। पहले तो क्या है, पुलिस वाले आके उसको बेचारे उसी बंदे को अरेस्ट कर लो जिसने सुसाइड, एक तो वो बढ़ने पे जा रहा है, बच गया गलती से, फिर और फंस जाएगा। दैट्स थिंग। etiology, genetic cause, environmental factor, biochemical factor. Biochemical theory of the depression postulate as a deficiency in neurotransmitter, like जैसे मैंने बताया आपको, serotonin, dopamine, noradrenaline. Dopaminergic activity reduce in the case of depression, overactivity mania. साइकोसिस में भी डोपामिन एक्टिविटी बढ़ जाती है. एंडोक्राइन फैक्टर, if we see hypothyroidism, Cushing syndrome, drug abuse or alcohol, hormone level change, physical illness, side effect medication, drugs, analgesic, antidepressant, antihypertensive, anticonvulsant, benzodiazepine withdrawals and antipsychotics. ये ड्रग्स भी है अपने आप में, जो कि कुछ लेवल पे, कुछ डोज पे डिप्रेशन डेवलप करती है. जैसे कोई नींद की गोलियां खा रहा है तो उसको एमनेजिया हो सकता है, भूलने का प्रॉब्लम, और डिप्रेशन हो सकता है. फिजिकल इलनेस, वायरल इलनेस, कार्सिनोमा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, थायराइड डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पर्निशियस एनीमिया, डायबिटीज, SLE, एडिशन डिजीज. पैथोफिजियोलॉजी, बायोजेनिक एमाइन हाइपोथेसिस, रिसेप्टर सेंसिटिव हाइपोथेसिस, सेरोटोनिन ओनली हाइपोथेसिस, परमिजियो हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, न्यूरोएंडोक्राइन हाइपोथेसिस. Like biogenic amine hypothesis. This is due to deficiency of monoamines. Monoamines is the particularly noradrenaline, serotonin. Can't explain the delay in the time of the onset of clinical relief of depression up to 6 to 8 weeks. अगर आप किसी को एंटी डिप्रेशन दवाई देते हैं तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, मिनिमम इम्प्रूवमेंट इन द सेंस की 4 to 60% या और 80%, वो इसके लिए आपको टाइम लगता है उसको 6 to 8 weeks. Receptor sensitivity hypothesis. Depression is the result of the pathological alteration, supersensitivity of regulation in the receptor site. TCA tricyclic antidepressant, myoinhibitors cause desensitization, the uncoupling of the receptor site, possibly down regulation, decrease in the receptor site. Serotonin. This is a decrease in the serotonin, downplay noradrenaline, but the serotonin only theory has shortcoming. It does not explain why there is a delay. It is the onset of clinical relief. It does not explain the role of noradrenaline in depression. परमिजियो हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस तो समझते हो ना, हाइपोथेसिस को बोलते हैं कि किसी को अज्यूम करना, हाँ कि ये हो सकता है, वो होता है. एक अपने एक अज्यूम कल्पना करके चलते हैं कि इसकी रिसर्च करनी है, ये चीज़ करनी है अपने को, वो चीज़ इसमें निकलना चाहिए, तो वो दैट्स ए हाइपोथेसिस. वो थीसिस नहीं है, रिसर्च नहीं है ना, एक परिकल्पना है. If serotonin and noradrenaline falls to abnormal low level, the patient become depressed. If the level of serotonin falls, the level of not become abnormal high, the patient become manic. Electronic membrane hypothesis. Hypocalcemia may be associated with mania, hyperexcitability with depression, neuroendocrine hypothesis. Pathological mood disorder explained or contributed to by altered endocrine function. Clinical manifestation, depression. Thinking is pessimistic and some cases suicidal. In severe case, psychotic symptoms such as hallucination, delusion may be present. Insomnia or hypersomnia, decreased libido, weight loss, loss of appetite. Intellectual or cognitive symptoms include a decreased ability to concentrate, slowed thinking, and poor memory to recent events.
See, that's a figure. Situational loss, isolation, conflict, stress. ये तो हो गई situations. Thought, negative thinking habits. Her self criticism, unfair, unrealistic thought. जिस थॉट का कोई रियलिटी से कोई लिंक नहीं है. एक्शन, सोशल विड्रॉल्स, रिड्यूस एक्टिविटी लेवल, पुअर सेल्फ केयर. फिजिकल स्टेट, अल्टर्ड स्लीप, लो एनर्जी, फटीग, एजिटेशन, चेंज इन ब्रेन केमिस्ट्री, इमोशंस, डिस्करेजमेंट, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, एंगर, नमनेस, एंजाइटी. डायग्नोसिस, as per ICD-10 diagnostic criteria, depressed should be depressed mood, loss of interest, enjoyment, reduced energy leading to interest, particularly diminished activity. Reduced energy leading and increased fatiguability, diminished activity. Common symptoms. डिप्रेस का पेशेंट होगा तो क्या होगा उसको? कॉग्निशन अगर देखा जाए, कॉग्निशन सिम्टम्स, कॉग्निशन माने इंटेलिजेंसी, हाइपर मेंटल फंक्शन, कॉग्निशन. तो कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी उसकी, रिड्यूस, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा. और ऐसे कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं जिससे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा बंदा? ओके, anyone else another that? एंजाइटी, तो एंशियस होगा, एग्जाम में डर लग रहा है, एग्जाम डर लग रहा है, क्लास में डर लग रहा है, सर का डर लग रहा है, पता नहीं क्या सोचते हैं. कुछ लोग तो पिछले लाइन इसलिए बैठते हैं. हाँ, जब पूरी क्लास होती है फिर उनको पीछे से उठा के आगे बैठते हैं. हमारे टाइम में ये होता था, एमबीबीएस करते थे. चलो कोई इशू नहीं है, डोंट वरी. और सेल्फ एस्टीम, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्लैक एंड पैसिमिस्टिक व्यूज ऑफ फ्यूचर. मतलब इसका इट मीन्स कि एक ट्राइड होता है, ट्राइड जिसको बेक ने दिया था, लिख लो. कॉग्निटिव ट्राइड बाय बेक, बेक ट्राइड बोलते हैं इसको. नेगेटिव एटीट्यूड टू सेल्फ, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्यूचर. उसको हमेशा फ्यूचर में नेगेटिव लगेगा. इन्वायरमेंट में बैठा था यार, सब लोग ठीक नहीं है, चाहे वो सही हो, नहीं कुछ में गड़बड़ बोल रहे मेरे बारे में, मतलब आई थिंक मुझे लाइक नहीं कर रहे, या जो मैं ज़्यादा वर्कलेसनेस में या किसी काम का नहीं है, ऐसा थिंग उसको आएगा, ऐसा नेगेटिव जो आएगा. और एक उसका इन्वायरमेंट के लिए हो गया, और फ्यूचर, यार मेरा क्या होगा लाइफ में. इवन उसके पास पैसा भी है, डिग्रियाँ भी है, सब है, अगर डिप्रेस में आ गया, सीविड ट्राइड आएगा उसको. इसको आप कॉग्निटिव ट्राइड बोल सकते हो. बेक साइंटिस्ट हुआ था, साइकेट्रिस्ट थे, तो इन्होंने बेक बीडीआई स्केल भी दिया था. आइडियाज और एक्ट और सेल्फ आर सुसाइड, डिस्टर्ब स्लीप, डिमिनिश्ड एपेटाइट, माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड. अब क्या है कि मोस्टली आप ये मान के चलो कि 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. ये तो आप समझ गए होंगे मॉडरेट किस कैटेगरी में आएगा, माइल्ड कहाँ आएगा, सीवियर कहाँ आएगा. तो माइल्ड, एटलीस्ट इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है 2 वीक्स तक सिम्टम चलने चाहिए, तब डायग्नोस करोगे आप डिप्रेशन. भाई 2 सप्ताह तक ये लक्षण चलने चाहिए पेशेंट को, तब डिप्रेशन बोल सकते, उससे पहले नहीं बोल सकते. At least 2 of the usual symptoms of a depressive episode, but a less 2 common symptoms. Moderate depressive episode for at least 2 weeks, at least 2 or 3 of usual symptoms of a depressive episode, plus at least 3 of common symptoms. जो सिम्टम ऊपर डिस्कस किया अपन ने, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. At least 2 weeks, all 3 symptoms, usual symptom of depressive episode, plus at least 4 of the common symptoms, some of which should be सीवियर इंटेंसिटी. तो सीवियर में क्या होगा, कई बार F30, इसका ICD-10 कोड है, F30.0 शुरू करता है. F30.0 माइल्ड होता है,
F30.1 मॉडरेट होता है, F30.2 मॉडरेट विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, F32.3 विद साइकोटिक सिम्टम्स। अब जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स आ गए या विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स है और सीवियर डिप्रेशन मान लो, तो उसमें सुसाइड टेंडेंसी हो सकती है। आपको ये पूछना जरूरी है पेशेंट को कि डिप्रेशन, आपको डिप्रेसिव थॉट आती है क्या, सॉरी सुसाइडल थॉट आती है क्या, है ना? यू शुड आस्क। इन्वेस्टिगेशन, रेटिंग स्केल यूज कर लो। साइकेट्री में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन आते नहीं है, अभी रिसर्च चल रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन हालांकि, लेकिन बेसिक तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन से होता है। रेटिंग स्केल, बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बीडीआई, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, दोनों स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हेमडी अपन क्लिनिकल यूज करते हैं, बेक को भी यूज करते हैं। इसमें दो वर्जन आते हैं, क्वेश्चनर 17 और 21 क्वेश्चन आता है, 17 आता है। तो 17 जो क्लिनिकल यूज करेंगे अपन क्वेश्चनर, ऐसा एमसीक्यू में आएगा आपके प्री पीजी में आएगा, ठीक है ना, कि 17 जिस पे आ गया वो आएगा क्लिनिकल यूज, और रिसर्च पर्पज से यूज कर रहे हो थीसिस के लिए तो 21 क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, उसमें स्केल में लिखा हुआ आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्री पीजी। एक डेक्सा मेथड सप्रेशन टेस्ट है, लेकिन इसकी इतनी वैलिडिटी नहीं है, करते हैं कम करते हैं। और ट्रीटमेंट में तो अब आपको अगर यूनिवर्सिटी में इस पे साइकिट्री में से जो सवाल आता है वो कहाँ से पूछते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे देगा हमें कोई सी एग्जाम्पल, अभी एक क्लास में डिस्कस करेंगे। मायो इनहिबिटर्स हो गया, इसमें देर आर इरिवर्सिबल आइसोकार्बोक्सिलेट, इप्रोसिनिजिड, फेनिलजीन, ट्रेंसिसिप्रोमाइन, है ना, मैक्लोबेमाइड एंड क्लोरजिलिन, ठीक है। दिस इज द मायो इनहिबिटर्स। अब टीसीए हो गया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, नॉरएड्रेनालिन 5-हाइड्रोक्सिप्टोफैन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, इमिप्रामिन। इमिप्रामिन 1959 में आया था, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट वर्ल्ड में जो आया था। इट इज ऑल्सो प्रीपीजी है ना, थ्योरी में भी आएगा, उसमें भी आएगा। और सबसे पहला एंटी डिप्रेसेंट कौन सा आया था, विच एंटी डिप्रेसेंट फर्स्ट कम, मायो इनहिबिटर्स, ये फर्स्ट आया था, सेलेजलिन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, नॉरएड्रेनालिन 5-हाइड्रोक्सिप्टोफैन रिसेप्टर इनहिबिटर्स के, इमिप्रामिन हो गया, नॉरट्रिप्टिलिन, डॉक्सीपिन, डोथियाफिन, क्लोमिप्रामिन, एनए रिसेप्टर इनहिबिटर्स, डेसिम्प्रामिन, नॉरट्रिप्टिलिन, एमोक्सिपाइन। एसएसआई, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, फ्लुक्सिटिन, फ्लुक्सामिन, सर्टालिन, सिटालोप्राम। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एटिपिकल। ऐसे ही बाईसाइक्लिक भी होते हैं, फोर साइक्लिक भी होते हैं एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो एटिपिकल में ट्राजोडोन, माइनसेरिन, मिटाजेपाइन, वेनलाफेक्सिन, डुलोक्सिटिन, बुप्रोपियोन, टाइनेप्टिन। इसमें से कोई सा भी एक जना, एनी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हो। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, तो कौन सी ड्रग अच्छी लगती है, कौन सा नाम अच्छा लग रहा है, नाम कोई बता दो, कोई नाम सुना हो तो, अगर सुना हो तो बताओ। मेटाजेपाइन सुना आपने, किस में देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, ओके। वैसे डिटेल पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना, उसमें फार्माकोलॉजी में पढ़ ही लिया होगा आपने, चलता ना फार्माकोलॉजी आपको, उसमें सब आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मायो इनहिबिटर्स। ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ द नॉरएड्रेनालिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन मीन सीरोटोनिन। Mayo inhibitors, the mitochondrial enzyme involved in oxidative deamination of these amines. Amine oxidase inhibitors A, B. Mayo inhibitors A किस पे काम करेगा, पेरिफेरल नर्व एंडिंग पे, इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा पे, और बी किस पे काम करेगा, ब्रेन और प्लेटलेट,
ब्रेन और प्लेटलेट में क्या होता है, डोपामिन होता है। फिर नर्व एंडिंग और इंटेस्टाइन में क्या होता है, सीरोटोनिन और नोरेड्रेनालिन होता है। बॉडी में सीरोटोनिन मिलता है या बाहर से लेते हैं? मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? यस, ये सब में ब्रेन में होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, है ना। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो बीच में होता है, ठीक है। प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अगर नहीं पहुंच पाएगा तो ये सीरोटोनिन कम हो गया। और कहाँ मिलता है ये सब के अलावा? प्लेटलेट, इंटेस्टाइन, कट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, आप नोट कर लो कि सभी लोग यही बताएंगे आपको, मोस्टली ये बहुत बीच में पढ़ना पड़ता है, सीपीटी में लिखा है, साइकेट्री बुक आती है, पीजी में अगर कोई करोगे तो पढ़ने को मिलेगा कि सीरोटोनिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, प्लेटलेट, सीरोटोनिन या इंटेस्टाइन? एनी गेस? सभी लोगों को पता है कि डिप्रेशन दिमाग से होता है, माइंड से होता है, तो माइंड चीज से मिलना चाहिए। सभी लोग उसी के पीछे पड़ रहते हैं। इसमें रिसेंट अभी आर्टिकल आएगा, रिसेंट कभी पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम। एक आर्टिकल ढूंढना तनु, सीरोटोनिन, है ना, जो है बताऊंगा। इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा मिलता है, इंटेस्टाइन 95%, 5% इन द CSF ओनली। और अपन कहाँ पीछे पड़े रहते हैं, दवाइयों पे और यहाँ पे पीछे पड़े रहते हैं, जबकि सीरोडिया यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। अब वो कैसे बढ़ा सकते हो यहाँ वाला? ये तो दवाई से बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज मेडिटेशन से बढ़ जाएगा, इसको कैसे बढ़ाओगे? एक होता है ऑर्थोमोलिकुलर साइकेट्री। ऑर्थोमोलिकुलर साइकेट्री डील द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। The diet is important in the mental health, which is called orthomolecular psychiatry. Research is done by and discovered by the Paul Cullen. पॉल कुलेन सर था, उनको नोबेल प्राइज मिला था साइकियाट्रिस्ट को। उन्होंने मेंटल हेल्थ और डाइट पे रिसर्च किया था और ये बताया। तो इंटेस्टाइन पता लग गया, कैसे बढ़ाओगे सीरोटोनिन? अब मुझे एक दो एग्जांपल बता दो जिसमें ऐसा खाओगे, डाइट में क्या खाओगे कि जिससे सीरोटोनिन बढ़ेगा। कभी किसी साइकियाट्रिस्ट ने आपको बताया खाने पीने के लिए किसी मरीज को कि क्या खाना चाहिए, सिर्फ दवाई लिख दिया कि दवाई से ठीक हो जाओगे? हाँ तो बताते कोई? बहुत कम बताते हैं। तो सीरोटोनिन तो यहाँ पड़ा 95, तो इसका कोट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च में आर्टिकल में है सब 95 कैसे काम करता है। तो इसको डाइट होती है स्पेशली जो कि सीरोटोनिन बढ़ाता है, वो कभी बताऊंगा आपको, है ना। जैसे डाइटिशियन से पूछना, डाइटिशियन की क्लास होती है तुम लोगों में? डाइट नहीं होती, हेल्थ की, न्यूट्रिशन की नहीं होती, पढ़ लेना। और चलो कॉमन चीजें हैं, कॉमन तो बता ही सकते हैं। क्या ऐसा क्या कभी सुनाओ कि क्या खाना चाहिए जिससे आदमी खुश हो जाता है? हैं? एक एग्जांपल, एक ऐसा फ्रूट्स बता दो जिसमें सीरोटोनिन मिल सकता है। और उसको लोग जनरली खाते ही हैं, मतलब जनरली जिम वाले तो खाते ही हैं, जिम जाने वाले। बनाना, ठीक है, उसमें कहाँ मिलता है? बनाना में कहाँ मिलता है? जिसमें मिलता है वो तो फेंक देते हैं अपन। जो उसकी जो लेयर होती है ना अंदर, फिलिंग जो करते हैं, उसको तो फेंक देते हैं, उसमें मिलता है। उसमें नहीं मिलता जो बनाना खा रहे हो। काम की बात लगी नहीं लगी? माई इनिबिटर्स, साइड इफेक्ट, postural hypertension, hypotension, weight gain, atropine-like effect and CNS stimulation, severe hypertension response to tyramine-containing food sees reaction, drug reaction,
रिसरपाइंस एपिड्राइन, टीसीए। टीसी में एंटीकोलिनर्जिक होता है जनरली। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट फार्मा में पढ़ा होगा ना, बता दो यार। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट क्या होता है? फार्माकोलॉजी पढ़ी, उसमें दे रखा है एंटीकोलिनर्जिक। एक ड्रग का नाम बताओ। हाँ चलो ठीक है, अब साइड इफेक्ट बता दो। हाँ ड्राई माउथ, यस। आगे? ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, लाइक दैट। SSRI, first line drugs in depression, relatively safe and better patient accessibility. Some patients not responding to TCA may respond to SSRI. SSRI inhibit the reuptake mechanism and make more 5-FT available for reactions. This is a drawback like side effect, sedation हो सकता है, nausea हो सकता है, diarrhea, headache हो सकता है, और relative advantage. This is all about the pharmacokinetic comparison. Atypical antidepressant, trazodone 5-HT2 antagonist, alpha blockers, है ना, 5-HT2 blockers, no arrhythmia, no seizure, only postural hypertension. The most common side effect of the trazodone. दो सवाल आते हैं प्री पीजी में और MBBS में फाइनल ईयर में। अगर पूछेगा ट्राजोडोन शॉर्ट नोट आएगा तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स तब देगा जब ये दोनों चीजें लिखेगा। ट्राजोडोन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट और रेयर साइड इफेक्ट, रेयर, जो एक बार हो गया तो उसमें इमरजेंसी जाना ही पड़ता है। मोस्ट कॉमन इज, अगर रेजिस्टेंट इंसोम्निया हो रहा ना किसी को, शेडेशन, इंसोम्निया वो सोम्निया करता है, हाइपरसोम्निया। एंड रेयर साइड इफेक्ट इज द प्रियापिज्म। प्रियापिज्म नाम सुना? प्रियापिज्म नाम सुना नहीं सुना? तुमने फार्माकोलॉजी पढ़ी नहीं अभी तक? पढ़ी है? तो उसमें साइड इफेक्ट ट्राजोडोन नाम आया? Priapism is the sustained and painful erection of the penile part, penile organ. है ना? Even we can help for treatment of the patient by surgery and surgeon, है ना? And urologist. Venlafaxine, SNRI, serotonin, norepinephrine reuptake inhibitors. Fast in action, no cholinergic, adrenergic or histaminic interference, raising the BP. Mycin, only blood dyscrasis and the liver dysfunctions. Bupropion, important drug, इसके मल्टीपल एक्शन है, एंटी डिप्रेसेंट भी होती है, टोबैको सीजेशन में भी अपन देते हैं किसी को तंबाकू छुड़ानी हो, या ये स्मोक के लिए, सिगरेट स्मोकिंग के लिए, एंड हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो बढ़ाने के लिए। एक्ट एज ए इनहिबिटर ऑफ द डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन अपटेक एंड NDRI. नॉन सेडेटिव बट एक्साइटेंट प्रॉपर्टी यूज्ड इन डिप्रेशन, सीजन ऑफ स्मोकिंग, सीजर। अगर आपने इसको 450 mg के ऊपर दे दिया, 300 mg यूजुअल डोज होती है, 450 के ऊपर सीजर आने की पॉसिबिलिटी होती है पेशेंट में, 150 यूजुअल डोज होती है। सेरोटोनिन सिंड्रोम, दैट्स इंपॉर्टेंट। सेरोटोनिन सिंड्रोम कब होता है? A group of the symptoms that may occur at the use of certain serotonergic medication or drugs. The degree of symptoms can range from mild to severe, including potentially of the death. Symptom in mild case include high blood pressure as a fast heart rate, usually without a fever. Symptoms in moderate case include fever, agitation, increased reflex, tremor, sweating, dilated pupil, diarrhea.
all the clinical features of the serotonin syndrome. In the severe case, body temperature can increase to greater than 41 degree Celsius. Complications include seizures or extensive muscle breakdown, kidney failure, unconsciousness. अब कोच क्या हो गए सीरोटोनिन सिंड्रोम के? SSRI, SNRI है ना, सीरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, बुप्रोपियोन and tricyclic antidepressant, monoclonal oxidase inhibitors, anti-migraine medications, pain medications, lithium, illicit drugs, LSD, ecstasy, cocaine, amphetamine, herbal supplement, over-the-counter cough and cold medications, anti-nausea medications, लाइनजोलिड, रिटनॉल अवेलेबल। तो इसमें मोस्ट कॉमन ड्रग्स दो चीज याद रखो। अगर किसी को मायो इनहिबिटर्स शैलेजेलिन एंड मायो इनहिबिटर्स को ड्रग का ग्रुप की और ऐसे दोनों साथ में ले रहा है, तो दोनों साथ में अगर लॉन्ग टर्म चल गई तो उसको सीरोटोनिन सिंड्रोम होने का पॉसिबिलिटी रहता है। उसको आप आइडेंटिफाई इस क्लिनिकल फीचर से आप कर लोगे, है ना। तो ये तीनों एक ही चीज लगभग लगभग मिलता जुलता होता है। जब पैसेज आता है इमरजेंसी में तो उसकी हिस्ट्री आपको देखना जरूरी, कौन सी दवा चल रही है। सीरोटोनिन सिंड्रोम, लिथियम टॉक्सिसिटी एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, तीनों जो डिजीज है ये फेटल है, इमरजेंसी साइकेट्रिक इमरजेंसी। These are treatment of serotonin syndrome. Muscle relaxant we can give benzodiazepine, help in the control of the agitation, seizures, muscle stiffness, serotonin production blocking agent, oxygen and intravenous fluid, drugs that control heart rate and blood pressure, a breathing tube and machine, medication to paralyze your muscles. This is a figures and pictures showing, you can understand about that. Postsynaptic neurons, presynaptic neurons, synaptic cleft, receptors, दिख रहा ना आपको presynaptic, synaptic cleft, postsynaptic, degraded serotonin, ठीक है, and degraded serotonin, ये जो इसका जस्ट पाथ चेंज है, ओके, and synaptic cleft and the receptors इस पे अटैच होना चाहिए। Non-pharmacological therapy, lifestyle changes, stress reduction, social support, sleep, adequate sleep should be, and social life, social support, stress reduction. You can do daily life activity, stress dealing with counseling also, psychotherapy, cognitive behavior therapy, interpersonal therapy, IPT, psychodynamic therapy, comparing treatment, compared to CBT and IPT to antidepressant medicine, others control results. CBT, IPT medicine are equally effective. इक्वली इफेक्टिव मीन्स कि साथ में दो तो अच्छा रिजल्ट आता है, तो साइकोथेरेपी का और मेडिकेशन का। ब्रिक साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट, अदर कंट्रोल कंडीशन, 50 to 70% people benefit from treatment to significant extent compared to 30% placebo or control condition. Combined treatment, Medwork, Yoakley, psychosocial treatment, increased long range social functioning, prevalent relapse. ECT, सेफ एंड इफेक्टिव डिसऑर्डर ऑल सबटा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन। एक्यूट मैनिक एक्साइटमेंट में आप देते ही हो सिजोफ्रेनियम देते हो, डिप्रेशन में सीवियर डिप्रेशन सुसाइड टेंडेंसी में तो एसीटी दे सकते हो। कॉग्निटिव डिस्फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डिस्फंक्शन, प्रोलॉन्ग्ड एपनिया। अफेक्टिव डिसऑर्डर्स रिमेन्स one of the most commonly occurring mental illness in adult. It is often undiagnosed and untreated. Both pharmacological and non-pharmacological intervention act as a good treatment in affective disorders. Pharmacists play important role in the
दिस ट्रीटमेंट गोल। और तनु ये बताओ, फार्मासिस्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें? हाँ, कि जो डॉक्टर ने लिखी वो तो नहीं दी, कहीं स्पेलिंग में सपोज करो मैंने थायमिन लिख दिया, बहुत सारे थायमिन दे दी पेशेंट को, दोनों में डिफरेंस होता है ना। थायमिन और थायनोम, थायनोम किसको देते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में, और थायमिन विटामिन बी की कमी में। तो वो मैंने देखा कहीं सर। ठीक है, तो इसलिए आपको चेक एक बार चेक करवा लेना चाहिए मेडिकल। हाँ, तो डेट्स रॉन्ग, इसलिए इसके लिए तो गाइडलाइन आ गई। फिर आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन साइकेट्रिस्ट के कोई एंटी साइकोटिक या एल्फाजोलाम क्लोनाजिपाम कोई ड्रग नहीं दे सकता। और कुछ लोग दे देते हैं छोटी जगह पर, जो समझदार हो तो जिनको पता है कि भैया कुछ भी हो सकता है, पेशेंट आके वापस आके माथे पड़ जाएगा आपके, फार्मासिस्ट के पड़ जाएगा, भैया वो तो सो रहा है अभी तो उठा ही नहीं, तो उन्हें कौन सी डोज दे दी। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग है ना। तो फार्मासिस्ट का इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन उसके लिए आपको जब भी आप क्लिनिकल जब आओगे फील्ड में, तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डिस्कसिंग टुडेज क्लास। एनी डाउट, क्वेरीज, एनी सजेशन? अच्छा लगा कल क्लास? ठीक लगा आप लोगों को? कुछ थोड़ा अंदर गया या ऊपर से चला गया? वैसे मेरा क्लास ऊपर से जाता नहीं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ डीप में भेजने की। किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? तनु तुम्हारे आ गया? ये तो पीजी कर रही साइकेट्री, उसको तो आना ही है। चलो कोई नहीं, आ गया, वेरी गुड। और अब ऐसा है कि बाकी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट आप लोग अभी? हाउ मेनी? चलो जो भी है, वॉट एवर, टोटल कितने स्टूडेंट आपके बैच में जो आज की क्लास अटेंड करना चाहिए था? कितने आते हैं? नेक्स्ट टाइम सी आर नहीं है आपका, इनके सी आर के नंबर दो, आपके सी आर के नंबर दो, डॉक्टर तनु को दे दो, सी आर के नंबर ले लो। प्रॉक्सी नहीं लगाना किसी की, सबको बोलना, मैसेज कन्वे करना, ग्रुप होगा आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, इस मेरे को जानते हो ना? हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि सर की क्लास है, अच्छी क्लास लेते हैं, और पता नहीं अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन सब आया करो इसमें इकट्ठा।